নমস্কাৰ পুনৰ খবৰ দিল্লীৰ পৰা লৈ আহিছো দিল্লীত এতিয়া কি অৱস্থা বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি প্ৰতি মুহূৰ্তত দিল্লীৰ পৰা কেৱল মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে কবৰস্থ কৰিবলৈ এতিয়া ভূমিৰ অভাৱ হৈছে স্মশানত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কৰিবলৈ খৰিৰ অভাৱ হৈছে কেউপিনে কেৱল এম্বুলেন্সত মৃতদেহ কফিনত আহিছে কেৱল মৃতদেহ আমাৰ সাংবাদিক আজি উপস্থিত হৈছিল দিল্লীৰ একাংশ স্মশান আৰু একাংশ কবৰস্থলীত তেওঁলোকে কি দেখিলে আমি প্ৰথমে সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখাব খুজিছো যি দৃশ্য দেখিলে আপোনাৰো দুখ লাগিব ভয় লাগিব এইদৰে স্মশানত প্ৰতিখন এম্বুলেন্সৰ পৰা প্ৰায় প্ৰতি মুহূৰ্তত একোজন কোভিড ৰোগত মৃত্যু হোৱা লোকক অনা হৈছে এখন স্মশানত হাৰি হাৰি আপোনালোকে এম্বুলেন্সে দেখিব আমি মৃতদেহবিলাক আপোনালোকক দেখুৱা নাই এই মুহূৰ্তত কিন্তু এম্বুলেন্সবিলাক দেখি আপোনালোকে বুজি উঠিব যে স্মশানত কি পৰিৱেশ হৈছে এবাৰ আমাৰ কবৰস্থলীলৈ আপোনাক লৈ গৈছো প্ৰতি মুহূৰ্তত এইদৰে কফিন আহিছে জেচিবিয়ে মাটি খান্দিছে আৰু কবৰস্থ কৰিছে এই দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰি থাকোঁতে আৰু এখন এম্বুলেন্স আহিছে সেইখন এম্বুলেন্সতো আহিছে আন এক মৃতদেহ এআই দিল্লীৰ বাস্তৱ দৃশ্য টাইমেটৰ সাংবাদিক সৌভিত পাঠক দিল্লীৰ পৰা এই দৃশ্য আমালৈ পঠিয়াইছে প্ৰতি মুহূৰ্তত কেউপিনে আপোনালোকে এম্বুলেন্সে দেখিব এই এম্বুলেন্স একোজনকৈ লোকৰ মৃতদেহ লৈ অহা হৈছে এয়া কেউপিনে কবৰস্থলীত কেৱল কবৰ দি থকা হৈছে কবৰৰ অভাৱ হৈ গৈছে এতিয়া আন আন প্ৰান্তলৈ কবৰস্থলীসমূহ বহলাই লৈ যোৱা হৈছে জেচিবিয়ে প্ৰতি মুহূৰ্তত মাটি খান্দি আছে কাৰণ প্ৰতি মুহূৰ্তত এম্বুলেন্সত একোখনকৈ এজনকৈ লোকৰ মৃতদেহ আহিছে ইয়াৰ পূৰ্বে এটা দিনত এজন বা দুজন লোকৰ মৃতদেহ আহিছিলে কবৰ দিছিলে আজি দিনটোত এটা দিনত এখন কবৰত 10,000 লোকক কবৰস্থ কৰা হৈছে কিমান ভয় লগা খবৰ যিখন কবৰত এজন বা দুজন লোকক কবৰস্থ কৰা হৈছিল তাত 10,000 পাৰ হৈছে ইফালে খৰিৰ অভাৱ হৈ গৈছে প্ৰতি মুহূৰ্তত খৰি লগা হৈছে মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবলৈ স্মশানত কিউ কৰিব লগা হৈছে দীঘলীয়া শাৰী প্ৰতিখন এম্বুলেন্সত নম্বৰ দিয়া হৈছে সেই নম্বৰ অনুসৰি মৃতদেহসমূহ সৎকাৰ কৰা হৈছে ইপিনে কবৰস্থলীটো একে পৰিৱেশ কোভিড প্ৰটোকল মানি পিপি কিট পিন্ধি এয়া এগৰাকী আত্মীয় কান্দোনত ভাগি পৰিছে নিজৰ আত্মীয়ক হেৰুৱাৰ বেদনা তাকো অকালতে তাকো কোভিডত ইয়াতকৈ দুখৰ খবৰ কি হ'ব পাৰে এই দৃশ্যসমূহ আমি লেঠাৰিকৈ দিল্লীৰ পৰা আপোনালোকক এই কাৰণে দেখুৱাই আছো যে অসমৰ জনসাধাৰণো আচলতে সজাগ হোৱা ভাল দিল্লীৰ নিচিনা পৰিৱেশ যদি অসমত হয় তেন্তে অসমত পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হ'ব আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দিল্লীতকৈ বহু পিছপৰা সকলো ক্ষেত্ৰতকৈ আমি দিল্লীতকৈ পিছত আছোঁ আৰু কোভিডে এই ইউকে ভেৰিয়েণ্ট সাউথ আফ্ৰিকান ভেৰিয়েণ্ট ব্ৰাজিলিয়ান ভেৰিয়েণ্ট কোভিডৰ নতুন প্ৰকাৰ নতুন ৰূপ যদি অসমলৈ পূৰ্ণ গতিত আহে কি হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটোতে গুৱাহাটী 742 গৰাকী কোভিড পজিটিভ হৈছে অসমত 1600 পাৰ হৈছে আমাৰ সাংবাদিক যিমান দেৰি তাত উপস্থিত আছিল প্ৰতি মুহূৰ্তত হয় স্মশানত নহয় কবৰস্থলীত কেৱল এম্বুলেন্স আহিছিল মৃতদেহ কঢ়িয়াই কাৰোবাক কবৰস্থ কৰা হৈছে কাৰোবাক সৎকাৰ কৰা হৈছে কিন্তু প্ৰতি মুহূৰ্তত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে যদি এখন কবৰত 10,000 লোকক এদিনত কবৰস্থ কৰিব লগা হয় এখন স্মশানত যদি হাজাৰ হাজাৰ লোকক সৎকাৰ কৰিব লগা হয় তেন্তে দিল্লীত কি ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এয়া চাওক এটা কফিন আৰু এই কফিনটোৱে আপোনাক বহু কথা বুজাই দিব যিখিনি কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এখন কবৰস্থলীত আমাৰ সাংবাদিক সৌভিক পাঠক গৈছিলে স্মশানলৈ গৈছিলে প্ৰথমে তেওঁ কি দেখিছিলে বৰ্ণনা কৰিছে আমি সৌভিক পাঠক আমাৰ দিল্লী দিল্লী কেপিটেলছৰ সাংবাদিক সৌভিক পাঠকৰ কাষলৈ গৈছোঁ
अभी आपने देखा कि शमशान घाट का क्या हाल है और अब हमारी मौजूदगी आईटीओ रोड स्थित कब्रिस्तान में है, जहां पर देख सकते हैं कि पीछे एक जेसीबी मशीन है और इसके द्वारा यहां पर खुदाई की जा रही है। लगातार दिल्ली के अंदर मौतों का सिलसिला शुरू है और जिसके चलते शमशान আৰু সেয়া আছিল তেওঁ বৰ্ণনা। তেওঁ এজন লোকৰ সৈতে কথা পাতিছিল। তেওঁ ক'লে যে কেনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ মৃতদেহ তেওঁ দৈনিক কবৰস্থ কৰিছে। समीम, आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर लगातार जो दिल्ली के अंदर मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है कोरोना के चलते, यहाँ पर लगभग कितने जनाजे आ रहे हैं डेली? तकरीबन 10 से 12 जनाजे डेली पहुँच रहे हैं यहाँ पर तदफीन के लिए। अच्छा, पहले जनाजे कितने आते थे और कोरोना के बाद जब ये आंकड़े बढ़े, मौतों का भी आंकड़ा बढ़ा, तो यहाँ पर जनाजे कितने आ रहे हैं? ऐसा है, पहले तो ये था हफ्ते में एक आध आ गया, कभी 2 हफ्ते में 2 आ गए, 3 आ गए, लेकिन 4 तारीख से डेली जनाजे हमारे पास 10-12 आ ही जा रहे हैं। ये बात निकलकर अभी सामने आ रही थी कि यहाँ पर जो ये आईटीओ का कब्रिस्तान है, यहाँ पर पर्याप्त जगह है, लेकिन मौतें जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर हो रही हैं, यहाँ पर ये जगह भी अब कम पड़ने वाली है। आपको क्या लगता है, ये जगह पर्याप्त है या जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ गए हैं उसमें ये जगह कम पड़ सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जगह कम है। जो कोविड ब्लॉक है वो थोड़ा भरने लगा है, तो उसके लिए लेटर दे दिया है और एक आध दिन में उसके लिए दूसरी जगह के लिए वो अप्रूवल आ जाएगा, तो वो जगह बढ़ जाएगी। जी, किस तरीके से लगभग यहाँ पर देख सकते हैं कि पीछे भी एम्बुलेंस खड़ी है और लगातार 4-5 एम्बुलेंस और आ रही हैं। लगभग कितने कोविड पेशेंट जो यहाँ पर कोविड के जनाजे हैं वो लोगों के कितने आ रहे हैं? আৰু এবাৰ শ্মশানলৈ গৈছিল আমাৰ সাংবাদিক সৌভিত পাঠক, আৰু শ্মশানত কি দেখিলে তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে, তাৰপিছত তেওঁ কথাও পাতিছে। हमारी मौजूदगी लोधी रोड स्थित शमशान घाट में है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे का माहौल बेहद ही गमगीन है और यहाँ पर कोरोना पेशेंट को जलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली में जिस हिसाब से कोरोना बम फूट चुका है और कोरोना का ग्राफ इतना बढ़ चुका है, इसके बाद में यहाँ का हाल बेहद ही चिंताजनक है। दिल्ली में कल जो मौत का आंकड़ा था वो 167 था और जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या थी वो 23,375 थी, जिसके बाद से दिल्ली सरकार लगातार ये लोगों से अपील कर रही है कि आप लोग घर में रहें, बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना का ये जो चौथा वेव है ये बहुत ही खतरनाक है और लोगों को, खासकर यहाँ पर जो युवा लोग हैं 18 से 30 वर्ग के लोग हैं, उनमें इस वेरिएंट का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा है। आप मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोगों की डेड बॉडी है इनको लाया जा रहा है और एक के बाद एक जो चिताएं हैं वो जल रही हैं। ये सीधी तरीके से एक जो दृश्य है वो आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि दिल्ली में कोरोना का स्तर जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि आप लोग भी घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि दिल्ली में जो कोरोना का स्तर है वो बेहद खतरनाक पोजीशन में पहुंच चुका है। यहाँ पर जो हाल है, लगातार भीड़ बढ़ गई है और डेड बॉडी लगातार एक के बाद एक आ रही है। पोजीशन बहुत खराब है दिल्ली में। आप यहाँ पर पूरा प्रबंधन कार्य देखते हैं, क्या पोजीशन है इस जगह की? पोजीशन तो सुबह से बराबर बोरियां चल रही है हमारे यहाँ, जैसे आ रही है साथ के साथ हम लगवा रहे हैं। अभी इस टाइम तो हमारे प्लेटफार्म सारे फुल होने जा रहे हैं, कुछ और 5-10 बोरी एक जला पाएंगे, उसके बाद फिर नहीं हो पाएगा। लगातार जिस हिसाब से बात करते हैं, अगर कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा था, पहले 11,000 थे, 13,000 हुए, फिर 17,000 और आज स्थिति है कि 24,000 के ऊपर आंकड़े हैं कोरोना संक्रमण के मरीजों के। तो किस तरीके से आप यहाँ पर व्यवस्था को चला पा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक चिता चल रही है और गाड़ियों का आने का सिलसिला, जो एम्बुलेंस के द्वारा डेड बॉडी आ रही है उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं आप? मैनेज तो बस जी हाथ जोड़ के करते, वैसे टाइम में आदमी दुखी है तो उससे कुछ लड़ तो सकते नहीं है। अब हाथ जोड़ के समझाया जाता है कि भाई रुक जाओ, 5 मिनट लकड़ी आ रही है, तैयार करवा रहे हैं, साथ के साथ एक एक करके लगाते जा रहे हैं। और इस हिसाब से एक बॉडी हम लगाते हैं, इतने 4 और आ जाती हैं, एक साथ 5-5, 6-6 चिताएं एक साथ जल रही हैं। जो बात कही जा रही है लकड़ी भंडारण की भी बात कही जा रही है, लगभग कितने दिनों का स्टॉक आपके पास बचा है? क्योंकि हम लोगों ने जाकर देखा तो वहाँ पर लकड़ियाँ भी कम है। अब नहीं, लकड़ी हमारे पास बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है। अभी तो ये आपने देखा होगा, बाकी पीछे पार्किंग में काफ़ी स्टॉक लगा रखा है। अगर कोई ऐसी स्थिति रही तो हमारे पास 1-1.5 महीने तक तो लकड़ी बराबर चलती रहेगी। बाकी हमारी लकड़ी रात को गाड़ियाँ फिर आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ पर जलाई जा रही हैं, चिताएं जलाई जा रही हैं, आप यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, लगभग कितनी बढ़ोतरी हुई है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो पहले जो नॉर्मल संस्कार होते थे उसमें 10-12 बॉडी आती थी। अब आज के टाइम में जैसे देखा जाए हमने 50-50, 55-55 बॉडी जला रहे हैं।
हैं। पीछे 45 बोडी थी, 37 बोडियाँ थी, एक दिन 55 बोडी भी जलाई है। अब आज भी 40-45 के आसपास पहुंच जाएंगी हिसाब से, तो काफ़ी बढ़ा हुआ है जी इस टाइम। আৰু সেয়া আমাৰ দিল্লী কেপিটেলছৰ সাংবাদিক, টাইম 8 কেপিটেলছৰ সাংবাদিক শোভিতে বৰ্ণনা কৰিলে।